Find maximum student for the same topic. That is why I'm choosing a topic. It is from actually unit number 4. I'm sorry that I am disturbing you by giving different topics, but other student also will join the class, and I want to take a common class for all the students, those who are having the common subject. That is why I'm choosing unit number 4, and there unit number 4 we have to discuss about the beta and gamma functions. What is beta function and what is gamma function? What are its properties? And what is the relation between beta and gamma function? Properties you will get it for 2 marks, and Okay. relation you will get for 7 marks. And hopefully relation will come maximum cases. So the name of this topic is special functions. Special functions. Look at that. I'll go for actually now from this special function we have to discuss about two types of function. One is called beta function, another one is called gamma function. So let's start our class with the definition of beta function. And one more thing is everything you have to listen carefully, and please stop me if you don't understand anything. This is beta function. Okay. We are starting with the beta Beta. function. Let us see the definition. Sometimes they may ask you in exam, they may ask you the definition of beta function. Okay, to look at the beta function because we are going from the basic. So hopefully you understand everything. The beta function is denoted by is denoted by we are denoting like this beta of m comma n denoted by beta of m comma n where both of these values m and n should be greater than 0, which means we don't take negative values and and defined defined by a definite integral definite defined by a definite integral as now original beta and gamma function means we are writing the formula now. This is like that beta of very important beta of m comma n is equal to you have to memorize 2-3 times you have to read, you will get the idea. Integral 0 to 1 x to the power of m minus 1 into 1 minus x to the power of n minus 1 into dx. I read once again. Beta of m comma n is equal to integral 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x raised to the power of n minus 1 dx. Beta of m comma n is equal to integral 0 to 1 x power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 into dx. And here the condition is what? M should be greater than 0 and n should be greater than 0. Can you read this formula? Beta of, come on. Yes. Yes, come on. Beta of, yes. आपको रीड करने आना चाहिए ना. Beta of m comma n is equal to, come on. Integral 0 to 1 x power m minus 1 and 1 minus x raised to the power of n minus 1 dx. Now here we have properties. Properties. If you see the question paper, definitely one property is there in either for 2 marks or for 7 marks. Properties of beta function. We have to prove the properties and later on
We have to prove the properties, and later on, we have to use these properties as a formula. Properties of beta function. First of all, definition of beta function is done. Now we have three properties of beta function. The first one is beta of m comma n. Beta of m comma n is equals to beta of n comma m. This is your first property of beta function. Now, second property, which is very, very, very important, and most of the cases you will get this property in exam. I am talking about long answer. Beta of m comma n is equals to integral 0 to infinity x to the power of n minus 1 into divided by 1 plus x. 1 plus x raised to the power of m plus n into dx. Sometimes this can also be written as, sometimes in some of the textbook, they are written this one as x to the power of, instead of n, we have m here, m minus 1 by 1 plus x raised to the power of m plus n. You should be very careful when proving this property. This is the second property. And the third property will be, yeah, Mr. Ali, you see, this is actually fourth unit. Are you there, Ali? Yes, sir. Yes, this is fourth unit. Because of rain, we don't have offline class today. That's what I am taking online class. And the topic which is common for all the students I am discussing. This is unit number 4 of M2. There we have two types of function we have to discuss. That is beta function and gamma function. So we are discussing about beta function. So I wrote the definition of beta function. This is the formula for beta function. We have three properties of beta function. I wrote already two. This is the third one. I am going to prove this also today only. In our today's class, let me prove these properties. Beta of m comma n is equal to 2 times integral 0 to pi by 2. 2 times integral 0 to pi by 2 sine theta whole to the power of 2m minus 1 into cos theta whole to the power of 2n minus 1 into d theta. This is your third property of beta function. After that, for revision purpose, some formulas of intermediate I want to discuss, which is helpful to understand, which is helpful to find, which is helpful to prove the property 1, 2, 3. Okay, that first formula we are using here is integral 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a. See, this formula is applicable whenever the lower limit is 0. I repeat my point. This formula is applicable whenever lower limit is 0, upper limit is anything. So this can be written as, like I will explain, f of x dx. Lower limit is 0, upper limit is a. A may be anything. A may be pi by 2. A may be pi. A may be 2 pi. Whatever it is. That x can be written as this upper limit minus x. Now, second formula is integral a to b f of x dx can be written as, if you change the variable, integral a to b f of t dt. The meaning of this formula, changing the variable will not affect the problem. f of x dx को we can also write as f of t dt. x को t से, x को y से, x को m से भी रिप्लेस करने से आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा. ये दो फॉर्मूले डेरिवेटिव के भी देख लीजिए आप. एक और यहाँ पर ये बहुत यूज हो रहा, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x is equal to minus 1 by x square. So next we are using one more formula to prove this property. The fourth one is integral a to b f of x dx. I am not giving a list of 100 formulas that you have to memorize. Only a few formulas is enough. So if you change the position of the limits,
A to B, if you change it as B to A, then minus will come outside. मतलब लिमिट्स अगर चेंज करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट का कुछ रिवीजन हो गया। नाउ लेट अस प्रूव द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को अपन प्रूव करना है, अच्छे से देख लीजिए जरा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बोल दूं, इफ यू चेंज दिस m, if you change this m, direct effect is here. If you change this n, direct effect is here. Rest of the problem will not be changed. जैसे ही आप m को चेंज करेंगे, x के ऊपर का m चेंज हो जाएगा, n को चेंज करेंगे, n के इधर का n चेंज हो जाएगा। Hope you understand. Shall we go for the next page? Please, I Yes, am sir. not getting any reply. Answer दीजिए दोनों भी, दो स्टूडेंट है क्लास में भी। जी सर, श्योर। Yes. Okay. Let's proceed. We are going to prove the first property, that is beta of m comma n. We have to prove that it is equal to beta of n comma m. Okay, so to prove this property, you see, we have learned just this formula only today. So means what? I can take the help of this formula only. आप आज अपन ये प्रॉपर्टी को सीखने के लिए सिर्फ यही एक फार्मूला, देखिए ये स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल फार्मूलाज है, नथिंग इज न्यू। मतलब यहाँ पर जितने भी चीजें है ना, वही यूज करके मैं रिजल्ट्स प्रूव करने वाला हूँ स्पेशल फंक्शन। एक नई चीज कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हूँ मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना? तो मैं आपको उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू प्रूव व्हिच इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। Let's start the proof of this. Yes, Maria, you are not giving the answer. Please reply. Yes, sir. So, by definition of beta function, by definition of beta function, what is that? We have just now we have wrote that formula and you have to memorize that. Beta of m comma n is equals to beta of m comma n is equal to, come on, say with me, integral 0 to 1 Integral 0 to 1 x power n minus. एग्जैक्टली आप एक पेपर ले लेके साथ में, ये कैलकुलेटर की तो जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले को आप एक से दो बार तीन बार लिखे आ जाता। दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। बीटा ऑफ m comma n is equals to integral 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x power n minus 1 into dx. So the help of this formula I am taking to prove this result. इसके बाद में you see already we wrote one formula here, this one. Look at, we know that integral 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a f of a minus x dx. As I said, to apply this formula, the lower limit should be 0. Is our question, in our question, is the red color is our question now. Green color is only to help you. Okay, तो लोअर लिमिट 0 है ना, यूज कर सकते हैं ना ये फॉर्मूले। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या चेंजेस हो रहा, x कैन बी रिटन एज अपर लिमिट माइनस x। तो यहाँ पर जहां पर भी x है, अपर लिमिट माइनस x लिख से, अपर लिमिट की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो लेट अस अप्लाई दिस। देखिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, लेट अस अप्लाई नाउ। बीटा ऑफ m comma n is equals to, according to the formula there is no change of the limit, no change here, write down as it is. This x can be written as upper limit minus x, upper limit यहाँ पर है 1, 1 minus x to the power of m minus 1 as it is into 1 minus, again this x can be written as upper limit minus x and raised to the power of n minus 1 into dx. This is equal to integral 0 to 1
1 minus x all to the power of m minus 1 into 1 multiply with minus sign minus 1 minus into minus plus x plus to x the power of n minus 1 into dx. dx. So already we know that plus and minus will be cancelled. This plus 1 and minus 1 will Cancel. be cancelled. So this is equal प्रिंट to कर रहा है, फिर से बोलिए ना ये वाली लाइन. ओके फिर से बोल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं इस पे एक काम करता हूँ इसको इरेज करके फिर से बोल रहा हूँ देख लीजिए ये स्टेप ऊपर वाला स्टेप समझ में आया फर्स्ट वाला आ गया सर, ये रिसेंट वाला जो आप लिखे बीटा ऑफ एम इनटू एन इज इक्वल टू. एक काम करता हूँ मैं यहाँ से फिर से बता ठीक है ना पहले तो आप फार्मूले को समझने की कोशिश करिए फार्मूला क्या है फार्मूला क्या बोल रहा है अपने को 0 टू ए लिमिट है लोअर लिमिट अगर 0 है तो फंक्शन में जहां पर भी x है उसको अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं तो ये फंक्शन मतलब फंक्शन x इज पावर फंक्शन नाउ अब x को अपन चेंज करके कैसे लिख सकते हैं अपर लिमिट इज 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं सब जी. m minus 1 को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना राइट डाउन एज इट इज एंड द ब्रैकेट ओपन वंस अगेन दिस वन आल्सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माइनस जहां पर भी x है अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है अपर लिमिट इज 1 1 minus x and bracket close all to the power of n minus 1 we don't want to disturb and then dx are x अब कुछ नहीं करना है बस सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x whole to the power of m minus 1 into 1 multiply with minus sign minus 1 minus into minus plus x raised to the power of n minus 1 into dx. What work we are doing here is I want to cancel this plus 1 with this minus 1. अब इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्डर में लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 पहले ये वाले टर्म को लिखेंगे x पावर n minus 1 उसके बाद ये वाले टर्म को लिखेंगे 1 minus x whole to the power of m minus 1 into dx. अब जरा डेफिनेशन को देख के इसके ये किसका आंसर करें अपन बीटा ऑफ m कामा n का आंसर करें जरा डेफिनेशन को देख के अब इसकी वैल्यू क्या आती बोली मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता दूं स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए x पावर m अगर यहाँ पर m है तो यहाँ पर पहले m यहाँ पर m है तो देन दिस इज m अब मेरे को जो वैल्यू मिली जो फंक्शन मिला उसकी वैल्यू क्या ला सकते हैं पहले अब क्या आ रहा है इसमें बोलिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती बीटा ऑफ n कामा m होती ना पहले n आ गया उसमें पहले एन है फिर एम है सर. हाँ तो आ गया ना रिजल्ट बीटा ऑफ m कामा n इज जी. इक्वल टू बीटा ऑफ n कामा m दिस इज एन कॉल्ड कॉमा. symmetric property of beta function. Yeah, Mustafa, you joined late. I will just tell you what is going on here. Actually, we have taken a topic beta and gamma function, which is common for all the students, those who are now in this class. In that, we are discussing some properties of beta function. So here in this page number 1, I have given the definition of beta function. Okay, and some properties of beta function, number 1, number 2, and number 3. To prove this property, I am using some intermediate formulas. So we have started with the first property, this one. It is called symmetric property, m comma n is equal to n comma m. So we use the definition of beta function and use the intermediate formula whenever lower limit is 0. Function can be written as upper limit minus x. So in that function is x here. X can be written as 1 minus x. I don't want to disturb to the powers. जहां पर भी x है वहां पर 1 minus x करना कैंसिल कर देना पहले n को लिख देना फिर m को लिख देना रिजल्ट 2. Now second property. What we have to do? Tell me now. Second property. आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स में कई बार आ चुका है आपके पास अगर पास पेपर्स है तो आप देख लीजिए I don't want to say anything that how many times this property came in exam. Very, very important property is equal to, we have to prove that integral 0 to infinity x to the power of n minus 1 by 1 plus x raised to the power of m plus n into dx.
or sometimes this can also be written as integral 0 to infinity x power. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके n को m से रिप्लेस भी कर सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स. अगर n को m को n से रिप्लेस करने के बाद भी द पावर विल बी m प्लस n ओनली dx. This is called second property of which one? Beta function. Okay, now shall we start writing the proof of this? Please give me the answer, everyone. Yes, sir, Yes. please. Proof बोलिए. So by definition of BT का मतलब BF. चलो जा उतना शॉर्टकट आता है. बीटा फंक्शन. Now I want all the students should read along with me the formula of beta function, which is equal to beta of m comma n is equal to integral 0 to 1 x to the power of m minus Power 1 m 1 minus n minus x 1 raised to the power of n n minus minus 1. 1 दो बार, तीन बार, चार बार, कितने बार आप लिख के dx. पढ़िए. हाँ, खाली देखे तो नहीं आता बॉस, देखे तो नहीं आएगा. आप इसको याद करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आएगा. ठीक है. नाउ फॉर टू प्रूव दिस रिजल्ट वी हैव ए स्पेशल सब्स्टिट्यूशन. अब आप देखिए, जरा अच्छे से देखिए मैं क्या सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ. और एक चीज आपको कह रहा था, ये यूनिट का फायदा, एडवांटेज ऑफ दिस यूनिट, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन यू विल गेट. यहाँ पर देखो कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है. देखो यहाँ पर एक्स की जगह पे 5 आ गया. अरे 5 आ गया सर, मैं 5 पढ़ाया था, 7 आ गया एग्जाम में. यहाँ पर ना न्यूमेरिकल्स नहीं है. इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है. यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो सकते. हो गए तो फिर वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. समझिए ना. तो मैं अब इसको यूज करके ये डेफिनेशन को, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ. अब यहाँ देखिए, प्रूफ करने में दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ m प्लस n. 1 प्लस एक्स के जैसा कोई एक सब्स्टिट्यूशन आपको लेना है ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए. तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए. आप, मैं आपको खाली कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हिंट बता सकेंगे उसके. एक्स की वैल्यू अपन ले लेंगे ऐसा, डिनोमिनेटर ऐसा, 1/1 + y इज योर स्पेशल सब्स्टिट्यूशन टू प्रूव दिस रिजल्ट. ठीक है. ये सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करने का सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू 1/1 + y. अब अपन पहले dx की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट. x का डिफरेंशिएशन dx होता. अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला बोला था इंटरमीडिएट का, 1/x फॉर्म में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता -1/x², मतलब -1/1 + y का होल स्क्वायर. और यहाँ पर आ जाएगा dy. डिफरेंशिएशन दोनों सेट कर रहे हैं. यहाँ तक कुछ डाउट है? x की प्लेस पे 1/1 + y ले लिया अपन, और dy की प्लेस पे ले लिए. तो मतलब ले लिया नहीं, डिफरेंशिएट करने से वो वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज करना है. तो जो फंक्शन आपके पास है वो है x इज इक्वल टू 1/1 + y. दिस इंप्लाइज इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, x को अपन 1/x लिख सकते हैं, और इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या आता है यहाँ पर 1 + y. लिमिट्स को चेंज करने के लिए ये काम करता है. अब आपको लिमिट चेंज करना है, रिजल्ट प्रूव करना है. अच्छे से देखिए, पहले है लोअर लिमिट. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोअर लिमिट. समझ में नहीं आया, इमीडिएटली पूछ. लोअर लिमिट अभी लेना है 0, x की प्लेस पे 0. दिस इंप्लाइज x की प्लेस पे 0 लिए तो यहाँ पर आ जाता 1/0. 1/0 का मतलब क्या होता, इंफिनिटी. 1/0 का मतलब इंफिनिटी है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 + y. 1 + y एंड आई वांट y वैल्यू. ये 1 को अगर इंफिनिटी के पास ला लिए तो इंफिनिटी -1 होता, विच इज नथिंग बट इंफिनिटी ओनली. इंफिनिटी से जो भी ऑपरेशन करेंगे वो इंफिनिटी हो जाएगा. तो अपने को y की वैल्यू मिल गई. यहाँ पर क्या मिल गई, y इज इक्वल टू इंफिनिटी. अपर लिमिट चेंज करेंगे. क्यों कर रहे हैं ये सब, अपन x को y में चेंज कर रहे हैं, तो dx को भी y में लिखना पड़ेगा
और ये पुराने लिमिट है, इसको नए लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अपर लिमिट देखिए उसमें क्या है क्वेश्चन में, एक्स की प्लेस पे सर 1 ये है। लोअर लिमिट बोले तो एक्स और वन प्लस वाई को चेंज करना है। जी, लोअर लिमिट यहाँ पर अब 0 है ना, जी एक्स की लिमिट है ये, अपन वाई में लिख रहे हैं ना उसको, तो वाई के टर्म्स में लिखना, जी। एक्स में वो 0 था, अच्छा। वाई में जाके इन्फिनिटी हो जाता। क्योंकि देखो अपन जी जी। एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहे, तो डीएक्स को भी वाई में कन्वर्ट कर रहे। ये जो लिमिट है वो एक्स की है, मेरे को किसकी चाहिए, मेरे को वाई की चाहिए, वाई तो की। वाई में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। समझिए बात को। अब यहाँ पर एक्स की जी प्लेस सर। पे अगर 1 लिखे, 1/1 1 इज होता, 1 इज इक्वल टू 1 + y, ये +1 + 1 कैंसिल ऑन बोथ साइड, वी गेट y इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये जो नए लिमिट बन गए ना, ये y के नए लिमिट बन गए, x की जगह पे y आ गया। ये पूरा चेंजेस करने वाला हूं मैं अपने क्वेश्चन में अब, ठीक है, पूरा का पूरा चेंजेस मैं अपने क्वेश्चन में करने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे करो। जब भी मैं आपको ऑनलाइन क्लास लेना रहूंगा, मैं आपको एक 15 मिनट्स 20 मिनट्स बिफोर ही बोल देता हूँ। अदरवाइज क्या होता बोले तो आप क्लास में एंटर होने के बाद फिर वो क्लास समझ में नहीं आता। कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 0 से सुनना पड़ेगा, तभी आपको वो टॉपिक, कंसेप्ट आपको क्लियर होता। पूरा स्टार्टिंग से सुनना, जैसे आपने ये बोला बीटा गामा फंक्शन में, पूरा शुरू से ही बोल रहा हूं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये पूरे वैल्यूज को चेंज करके अपने फंक्शन में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें। यस, बीटा ऑफ m कामा n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 में चेंज करें, ये लोअर लिमिट x रखे, x की प्लेस पे 0 था। अब नया लिमिट क्या आ जाएगा बोलिए, नया लिमिट क्या आ जाएगा बोलिए, पुराना लिमिट तो 0 था, नया लिमिट क्या आ गया, बोलिए इंफिनिटी आया ना। दिस इज इंफिनिटी टू 0, ओके, इंफिनिटी टू 0। एक काम करेंगे, पूरा लिख के करेंगे, और इधर रहेगा ये वाला 0 to 1 अपना फंक्शन, ये x⁴ m-1 1 - x⁴ n-1 इंटू dx। अब मेरे को आंसर आप लोगों को बताना है, इट इज इक्वल टू, कि पुराने फंक्शन को अपन सब्स्टिट्यूशन से नए फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर लोअर लिमिट है इंफिनिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, इंफिनिटी। अपर लिमिट क्या है, अरे आप लोगों को बोलिए बाबा, अपर लिमिट इज 0, एक्स की जीरो। प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं अपन, 1/1 + y होल टू द पावर ऑफ m-1। यस फारिहा, यू आल्सो गिव मी द आंसर, 1 माइनस एक्स की प्लेस पे क्या ले रहे हैं अपन, कम ऑन, 1/1 + y, 1/1 + y जी, होल टू द पावर ऑफ n होल टू द माइनस वन पावर ऑफ n-1 dx। dx की वैल्यू भी है जी आपके पास, देखिए ये देखिए, माइनस dx की वन क्या बाई है सर? यहाँ देखिए, ये देखिए dx की वैल्यू -1/1 + y होल स्क्वायर है ना। अच्छा अच्छा। तो यूज इट दैट, -1/1 + y होल स्क्वायर इंटू डी। अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर x में था, अपन y में कन्वर्ट कर दिए सब्स्टिट्यूट कर। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस है ना, ये माइनस की वजह से इसके लिमिट्स चेंज हो जाते हैं। ये माइनस से ये लिमिट्स को मल्टीप्लाई करो, द ऑर्डर ऑफ द लिमिट विल चेंज। यहाँ पर मैं ये रूल भी बताया था आपको फर्स्ट पेज में, इफ यू चेंज द लिमिट, माइनस माइनस अगर है तो लिमिट्स को अपन उल्टा करके लिख सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, आई विल चेंज द लिमिट ऑफ दिस, एंड दिस इज 1 to the power of m-1 will give you 1 only, divided by, the power will go to the numerator and the power will go to the denominator, it is m-1 into, here if you take the LCM, 1 + y will be the LCM, 1 + y 1 is 1 + y,
minus 1. Okay, and again the power will go to the numerator as it is. और यहाँ पर माइनस तो अब नहीं है, 1/1 plus y whole square into d. So this plus 1 and minus 1 as अरे below एक it बार is. फिर से बोलिए ना। ये स्टेप, हाँ, ये ये स्टेप एक फिर से स्टेप बोलो। का लिए फिर से बोलिए। ठीक है, देखिए ये 1 to the power of m minus 1 तो 1 इच होगा, डिनोमिनेटर में एज इट इज पावर अप्लाई करिए, मतलब पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अप्लाई कर। उसके बाद यहाँ पर ये जो टर्म है 1 - 1/1 plus y, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कैसा, इसका अगर मैं एलसीएम ले लिया तो 1 plus y एलसीएम आता, 1 plus y 1 जा 1 plus y ओनली, -1 एज इट इज। तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, अभी +1 -1 को कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पर भी, देखो ऐसे। ओके ना, बाकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करा, बाकी का टर्म्स एज इट इज। इज इट ओके नाउ? ठीक है सर। 1 by Yes. 1 plus y to the power of m minus 1, एक्चुअली यहाँ पर सीरीज करना होगा, ये पिछला वर्ष कल अपने करना, नहीं तो वो पीडीएफ में बचेगी। ये +1 -1 cancel it. Now this is integral 0 to infinity 1 by 1 plus y whole to the power of m minus 1 into y to the power of n minus 1. डिनोमिनेटर को भी पावर लगाएंगे, 1 plus y whole to the power of n minus 1 into 1 by 1 plus y whole square. अब आप देखिए, अब लोअर क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ के आए, when the bases are equal, बोलिए आगे का, पावर शुड बी एडेड। डिनोमिनेटर का सबका बेस सेम है, देखिए है ना, डिनोमिनेटर का सबका बेस यस सेम सर। है ना, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। बीटा ऑफ m comma n is equals to बीटा ऑफ m comma n is equals to इंटीग्रल 0 to infinity, ओके, 1 न्यूमरेटर में 1 से ये सबको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट इट लाइक दिस, y to the power of n minus 1 डिवाइडेड बाय, अभी जो रूल आप बोले बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड, तो 1 plus y रेस्ट टू द पावर ऑफ, सारे के पावर को ऐड करेंगे, m minus 1 प्लस n minus 1 प्लस 2 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए, आप आपको ये तो छोटे से बेसिक तो करने आएगा, +2 से -1 -1 -1 और +2 -1 +1 विल बी कैंसिल, 2 से उसको कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल 0 to infinity y to the power of n minus 1 डिवाइडेड बाय, क्या बच गया यहाँ पर, 1 plus y whole to the power of m plus n into dy, m plus n into dy। जस्ट चेंज द वेरिएबल, मतलब क्या करेंगे, जहां पर भी y है वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। y को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूँ, x पावर m minus 1 y 1 plus x whole to the power of m plus 1 m plus n, which is our result, and we have proved the result. I have shown the second property of बीटा फंक्शन, यहाँ आप देख सकते हैं, यही आपको प्रूव करना है, 0 to infinity x power n minus 1 1 plus x to the power of m plus n, यही आपको प्रूव करना है। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन भी अपन प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर। कॉम्प्लिकेटेड है मगर इंपॉर्टेंट भी है। अब आप इसकी रिकॉर्डिंग को सुनना, जी। रिकॉर्डिंग को सुने तो आपको खुद से करने आ सकता है, आइडिया मिल सकता है। ठीक है, और इसकी एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है, बट वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करके यहाँ पर मैं आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ताकि आपको आगे चल के दोनों के रिलेशन को कभी करना पड़ा आपको तो कैसा करना है वो आप देखें। ये है आपका नेक्स्ट चीज, गामा फंक्शन।
गामा। तो डेफिनेशन क्या है इसका? द गामा फंक्शन, द गामा फंक्शन is denoted by, यहाँ पर अपन एक सिंबल यूज कर रहे हैं ऐसा वाला, और रूट का आधा रूट, इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एस गामा फंक्शन, गामा एन, रीड एस गामा एन ब्रैकेट क्लोज, वेर यहाँ पर भी स्पेशली आपको केयरफुल रहना है, एन शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव में गामा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। एंड एंड सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। डिफाइंड बाय a definite integral। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही। कोई फोन पे अगर कोई कॉल आया तो ऐसा आवाज ब्रेक होती है कि फोन पे कॉल आ गया तो इंटरनेट डिस्टर्ब, इसलिए ऐसा होता है। खैर मैं अभी एंड अप कर दे रहा हूँ सेक्शन। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला, ये बीटा फंक्शन का। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी। तो ये गामा फंक्शन में टोटल अपने पास 5 प्रॉपर्टीज है, और बीटा फंक्शन में टोटल अपने पास 3 प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी को अभी मैं प्रूव नहीं करा, इसको ज़रा टाइम लगता। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी उसको प्रूव नहीं करें, इसको टाइम लगता है, इसके लिए भी एक सब्स्टिट्यूशन है। बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के पूरे प्रॉपर्टीज को अगर आप पढ़ लिए तो उसका एक रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन आता है, जो एग्जाम में अक्सर पूछ रहा। बीटा ऑफ, ये रिलेशन को प्रूव करने का जो क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछ रहा, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार आ रहा। ये प्रूव करना है, अब आपके क्वेश्चन पेपरों में भी होगा, आप देखो। बीटा ऑफ एम गामा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। इसको प्रूव करने का है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो बीटा एंड गामा फंक्शन की बेसिक तो मैं प्रूफ बता दिया आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी अली एंड फरिया आपके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, अपने को जब जब भी टाइम मिला ना, मैं आपको ऑफलाइन से भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन से भी पढ़ाता हूँ। आप ऑनलाइन में अपना बीटा एंड गामा फंक्शन टॉपिक चल रहा, प्लीज याद रख लीजिए अच्छे से। ऑफलाइन में अपना डिफरेंशियल इक्वेशन और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जी चल सर। रहा। और M3 में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अपने स्टार्ट करें, ओके सर। 2 क्लासेस हो गए। और नेक्स्ट क्लास रहेगी तो मैं आपको शेड्यूल करके एक हाफ एन आवर बिफोर बोल देता हूँ। मैं कल वही क्लास अगर हो रही तो मैं आपको हाफ एन आवर बिफोर बोलता हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली रोजाना क्लास रहेंगी आपको, इधर ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि आपको एग्जाम से अभी नियर बाई एग्जाम से, तो क्लास तो रहेगी। कैसा, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, प्लीज उसका रिप्लाई करिए। जी ओके ठीक है, सर। तो मैं इसको क्लास को एंड अप कर दे रहा हूँ अभी। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।